चलिए मिलते हैं नीतीश काजला से, पेट सेपियंस के फाउंडर और सीईओ, जो भारत का पहला साइंस लेड प्रिवेंटिव पेट न्यूट्रिशन ब्रांड बना रहे हैं। जहां पेट हेल्थ केयर इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा बीमारी के बाद ट्रीटमेंट पर केंद्रित है, वहीं पेट सेपियंस बीमारी आने से पहले प्रिवेंशन पर फोकस कर रहा है। साइंस लेड न्यूट्रिशन के माध्यम से कंपनी पेट वेलनेस को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रही है। बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के उन्होंने सिर्फ 22 महीनों में अपनी कंपनी को 3.5 करोड़ रुपए ARR तक पहुंचाया है। पेट सेपियंस सप्लीमेंट्स, फंक्शनल फूड और साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स के माध्यम से पेट्स की हेल्थ को बेहतर बनाने के मिशन पर काम कर रहा है। आज यह ब्रांड अमेज़न अपनी D2C वेबसाइट और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से ग्रो कर रहा है। नीतीश काजला का विजन स्पष्ट है, पेट सेपियंस को भारत का सबसे ट्रस्टेड और अफोर्डेबल पेट न्यूट्रिशन ब्रांड बनाना। So basically, myself is Nitish, and I pass out from IIIT Allahabad from 2019, and then I work as a software developer approximately 5 years in the Samsung, and then I started the Pet Sequence. So at that time, we have the pets, and we are looking for the different brands for the different product and different things, and there is a lack of nutrition thing whatever the existing brand exists in the markets. And most of the brands are foreign brands, and they are not made as per for the Indian pet condition, Indian weather conditions. So we will find many brands exist in the market, Drools, Royal Canin, Pedigree, but most of the brands are in a particular niche. If we can talk about the Drools, he can only cater in the food category only, and in the low quality food, like affordable food for the Indian. If we can talk about the Royal Canin, so that are a premium category, but still in the food category. And in the food also, they are only in the single category. Single in the means ki dry kibbles food, not a home cooked food or nutrition value foods. Therefore, we started the Pet Sapiens, and before that, we researched the market, Amazon marketplaces, because I have the prior experience of the Amazon marketplaces. Therefore, we will think and we will launch as the first one. We launch our some product in the accessories categories, that is dog beds and cages. Then we will move in the supplements categories, and we launch the supplements. And if we talk about the USP of our products, why the Pet Sapient supplements? Because in the market, some 1 to 2 players or other exist in the supplement categories. So the main USP of our product is we can consider that we will provide every customer as a 90 days money back guarantee. Like anyone can claim 90-day full refund without asking any questions. Apart from that, we will provide full lab test report with the each packet of the customer that we are delivering to customers. Apart from that, we are customize the manufacturing as per our research, as per the requirements. We have the internal team of the veterinarian doctors and the nutritionist. With the help of them, we will decide the formulation of that particular supplements, what ingredients, at which level, and at what temperature, and at what pH they will be mixed together, and they will be formulated. After the formulation is completed, we will make first batch of 500 pouches of the product, and that we will serve to the different of NGOs, and we will test the product, how the results are coming from that particular products, like either any side effect or in how many days is the results are start coming from that particular product. Then we will fully launch that product on our marketplaces and our D2C websites. This is the whole process. And apart from that, if we can talk about the ingredients, as you know, in the supplement space, any brand exists in India or in the human or pet category both, their major USP is that from where the ingredients they are sourcing, because everything is depend on the source ingredients. Like in world, omega-3 are coming from different type of fish, salmon fish, normal fish, but most effective are we can consider like a salmon fish or from a particular country. This way we'll source the ingredients where we will think that their source of ingredients are very effective and easy to work or fast as work for the pet. These are the one of our common USPs. If we can talk about past traction and whatever the marketplaces we are present, right now we are on the 3 marketplaces or 3 channels. One is Amazon, second is our D2C website, and third one is our on the Blinkit. In the Blinkit, we have only in the till now in the Mumbai region only, and we are expanding the Blinkit. As you know, on the Blinkit, there are phases are running: trial phase, first phase, second phase, this way. And day one, our primary sales of channel is Amazon, because that we have the expertise, and we started from that channel. And 6 months back, we started on the D2C websites.
Last financial year, we closed the revenue of 2.79 CR. And if we talk about the current MMR is approximately 23 lakh per month. If we can divide the revenue in the, it depends on the marketplace channel, our 70% revenue is coming from the Amazon and 30% of revenue is coming from our D2C websites, and very small amount in the Blinkit because we already still only in the Mumbai regions and growing in the pan India. If we can talk about the unit economics, then we have the 60 to 65% of the gross margins. If we can talk about CM2, that we approximately we have 13%, 12 to 13% of CM2. If we can talk about EBITDA, then approximately 8%, 7 to 8% we have the EBITDA. We want to primarily be a D2C brand which caters to online customers who wants to order more like rather than going to retail. We want to primarily be a D2C brand which caters to online customers who wants to order more like rather than going to retail. Right. That segment you are focusing on. Primary focus, nutrition focus, only one particular niche, that is focused on the nutritions. Like in human, you can also think nowadays people are more focusing the nutritions, like that have the good quality of nutrition and balance whole cycle of pet. And if we can talk about the distribution channel, we in the first phase we only focus on the online, not go to the offline. इसमें जो आपने बोला था कि आपकी यूएसपी है कि आप इंडियन कंडीशंस के हिसाब से डिफरेंशिएट करके सेल कर रहे हो, ठीक है. मतलब मे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपका जो प्रोडक्ट खरीदेगा इट वुड बी प्रीमियम प्रोडक्ट, राइट, प्राइस्ड एट अ मास, नॉट एट अ मास मार्केट रेंज बट मोर देन these Premium categories segments. and all, right? Right. So targeted for affluent class. मिडिल अपर क्लास, अपर क्लास, और आपकी टारगेट क्लास या जो टारगेट ऑडियंस है वो एफ्लुएंट क्लास है, एंड वो लोग तो फॉरेन रीड्स ही बाय करते हैं ड्यू टू स्टेटस एंड ऑल, राइट. सो वहां पर कैसे डिफरेंशिएशन है फिर? हम उनको टारगेट करते हैं, प्रोडक्ट उनके लिए है जो ब्रीड्स फॉरेन है लेकिन इंडिया में रखते हैं. जैसे गोल्डन रिट्रीवर है, वो ब्रीड फॉरेन की है लेकिन इंडियन पेट पेरेंट रखते हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ इंडी डॉग्स को. आपका कोई को फाउंडर है? मेरे साथ एक एडवाइजर है. क्या स्टेक है उनका और आपका क्या स्टेक है? क्या स्टेक है उनका और आपका क्या स्टेक है? 95% आई हैव, 5% दे. डॉक्टर्स हैं जिनसे आप फॉर्मुलेशंस कराते हो, तो वो आपने एज एन एम्प्लॉय उन्हें किया हुआ है या फिर वैसे ही रखा हुआ उनको? जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करना है, पहले रिसर्च होती है और उसके बाद में मतलब उस इक्विटी में कोई डिवाइडेशन नहीं होगा. How would you push up your brand into D2C? Now first thing is that we highly focus on the retentions. अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करूँ तो हमारा प्लान ये है कि 40% नए कस्टमर्स लेके आए, 30% रिटेंशन से लेके आए और 30% ऑर्गेनिक कस्टमर्स लेके आए. रिटेंशंस की अगर मैं बात करूं तो रिटेंशंस में हम लोग हर एक स्टेप फॉलो करते हैं कि व्हाट्सएप मार्केटिंग, CRMs वगैरह, वो तो बिल्ड वगैरह है ही सारा का सारा GoQuick वगैरह के साथ में. उसके अलावा हम कस्टमर्स को कॉलिंग भी करते हैं और इवन पर्सनली मैं भी खुद कस्टमर से बात करता हूं कि एक्चुअली अगर कोई कस्टमर रिपीट परचेज नहीं कर रहा तो क्यों नहीं परचेज कर रहा, प्रोडक्ट में कोई इशू है या प्रोडक्ट अपना लाइफस्टाइल प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है या प्रॉब्लम स्पेसिफिक प्रोडक्ट बन पा रहा है. क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट लाइफस्टाइल प्रोडक्ट नहीं है तो आप रिपीट नहीं लेके पाओगे, क्योंकि प्रॉब्लम खत्म होते ही वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा. तो उन चीजों के साथ साथ फोकस कर रहे हैं. अगर मैं नए कस्टमर्स की बात करूं कि D2C में नए कस्टमर्स कैसे प्रिक्योर करते हैं, तो हम लोगों ने मल्टीपल टाइप्स के एड्स रन करके देखे कि आप प्रॉब्लम स्पेसिफिक एड्स हो गए, आपको UGC क्रिएटिव्स हो गए, आपको AI जनरेटेड वीडियोस हो गए, या बहुत और भी डिफरेंट साइज के. तो जो हमारे लिए सबसे ज्यादा वर्क करते हैं या जो और हम लोग सप्लीमेंट्स ब्रांड्स के देखते हैं, आप भी देखते होगे ह्यूमन सप्लीमेंट्स ब्रांड के, जो AI स्पेसिफिक जो एड्स होते हैं जिनमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं और AI की तरह इंडस्ट्री में आप अवेयरनेस फैलाते हो, वो एड सबसे ज्यादा काम करते हैं. तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा उसी इन्वेंट्री पे फोकस करते हैं जिस टाइप की सिमिलर ऑफ इंडस्ट्री में चीजें काम करेगी, क्योंकि AI के हमारे का रोआज वगैरह भी अच्छा आता है. दूसरा जो चीज है, हम लोग इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि अवेयरनेस की कमी है. हम लोग अवेयरनेस पे फोकस करते हैं कि कस्टमर को एजुकेट करने की कि भाई तुम्हें सप्लीमेंट्स क्यों लेना चाहिए, बिकॉज आपकी प्रिवेंटिव हेल्थ हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम के बाद डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा.
तो उस चीज एजुकेशन वाले कंटेंट पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। और अपार्ट फ्रॉम वेरी कॉस्टली टू बिल्ड, राइट, जो अवेयरनेस वाला पार्ट होता है वो बहुत कॉस्टली होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो मोटो है, या अगर आप देखो कि प्रोडक्ट कल को आके कोई भी बना लेगा, बिकॉज प्रोडक्ट बनाना इन इंडिया देयर इज नो डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कोई भी हो सकता है, बेच ले, कुछ भी कर ले। हम जिस मोटो से, या हमारा जो विजन है, जो हम लोग सेल करते हैं, वो ये करते हैं कि वी हम आपके पेट की जो लाइफ है उसको हम लोग एक्सटेंड करने में हेल्प करेंगे आपकी, और वी विल फोकस योर कंप्लीट पेट पेरेंटिंग। हम आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे, आपकी पेट पेरेंटिंग में हेल्प करेंगे, और आपकी डॉग की जितनी लाइफ एक्सटेंड हो सकती है उतनी लाइफ हम ट्राई करेंगे उसको एक्सटेंड करवाने का। उससे चाहे हो सकता है उसको गट रिलेटेड इशू ना हो, और किसी रिलेटेड इशू हो, उससे फीडबैक लेना कंटिन्यूअसली, उस फीडबैक से आगे के प्रोडक्ट डिसाइड करना हो सकता है। मतलब हम लोग उसको वेट कंसल्टेशन प्रोवाइड करवाना चालू करते हैं। मतलब ओवरऑल उसको अगर कुछ भी पेट इशू हो तो उसके माइंड में एक ही दिमाग है, पेट सेपियन से बात करनी है। क्या ये वाला जो आप बना रहे हो, इज इट अ रिप्लेसमेंट की जो फूड अभी एग्जिस्टिंग फूड है उसको रिप्लेस करो और ये जिंदगी भर खाते रहो? इज इट टेस्टेड? क्या ये डॉक्टर ऐसा कह रहा है? बहुत सारे आज भी पेट पेरेंट एक चीज तो कि होम कुक्ड फूड खिलाते हैं, तो उसमें प्रोटीन इंटेक होता ही नहीं है। उससे उनके गट इश्यूज या विटामिन इश्यूज या स्किन इश्यूज या जॉइंट इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप होम कुक्ड खिला रहे हो तो आप कंटिन्यूसली इसको फीड करो। अब आते हैं पैकेट फूड की। पैकेट फूड अगर मान लो आप ड्रूल्स खिला रहे हो, तो ड्रूल्स खिला रहे हो तो आपको ड्रूल्स में मैक्सिमम जो कंटेंट होता है केवल के अंदर वो फिलर्स होते हैं जिसका कोई यूज नहीं होता है, तभी वो मार्केट में इतना सस्ता है। तो उससे भी आपको बॉडी के अंदर डिफिशियंसी आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये फूड को रिप्लेस करते हैं, फूड के साथ ही देना होता है? फूड के साथ ही देना होता है इसको। फूड को रिप्लेस नहीं कर रहा, फूड तो देना ही है। फूड तो देना ही देना। जो मतलब कोई पेडिग्री खरीद कुछ रहा है भी खिला रहा है वो तो खिलाना ही खिलाना है, उसके साथ ही अलग से डायरेक्ट cost है। कंजप्शन नहीं है सिर्फ। अच्छा, हाँ। इसकी जो मंथली कॉस्ट है ये कितनी आएगी? 1500। ये बेसिकली वेट से डिपेंड करता है। मैंने ऑन एन एवरेज वेट बताया, तो इसमें ये होता है कि 10 kg से कम है तो एक सर्विंग स्कूप, 10 से 20 तो 2 सर्विंग स्कूप, 3.5 इस तरह के सर्विंग स्कूप। मतलब पूरे महीने की कॉस्ट 1500 आएगी। मैंने एवरेज आउट वेट लिया है कि इन जनरल अगर किसी का वेट 25 to 35 तो kg, उसमें प्रोबायोटिक और मल्टीविटामिन दोनों चले जाएंगे? नहीं, सिर्फ प्रोबायोटिक। एक्चुअली क्या है ना, आपके इसमें नीतीश प्रॉब्लम क्या है इसमें, यू वांट टू ग्रो ऑन D2C में यू आर टारगेटिंग मास प्रीमियम या प्रीमियम सेगमेंट। एक्चुअली क्या है ना, आपके इसमें नीतीश प्रॉब्लम क्या है इसमें, यू वांट टू ग्रो ऑन D2C में यू आर टारगेटिंग मास प्रीमियम या प्रीमियम सेगमेंट। वहाँ पे ना आपका कैक हमेशा हाई रहता है। राइट। मास प्रीमियम भी नहीं लेंगे सर इसमें? नहीं लेकिन प्रीमियम ही जाएगा, प्रीमियम ही जाएगा। वहाँ कैक आपका बहुत हैवी रहेगा। आपका ना मैथमेटिक्स जो हम सोच रहे हो आप अभी कि 1 करोड़ में प्रॉफिटेबल करके निकाल लोगे, वो बहुत टफ है निकालना। नहीं होगा, इसको और ज़्यादा फंड की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ना मेरे को ये जो आप आस्क कर रहे हो, जिस हिसाब से आप सोच मतलब रहे हो ना, आप फंड जो ले रहे हो ना उस पे आप अगर 50 लाख भी बना लो, मतलब सस्टेनेबल, वो भी आई थिंक बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे कैलकुलेशन से। तो ये गेम आपको बनानी है ना, तो मुझे क्या लगता है आपको ऑफलाइन को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। हम ये ट्राई कर रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर के अंदर ऑनलाइन जो है उनको 1 डे डिलीवरी या 2 डे डिलीवरी प्रोवाइड कराएं। फिर दूसरा, ऑफलाइन जाने के लिए हमने ये चैलेंज सोचा कि वेटनेरियन के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। वेटनेरियन जितने डॉक्टर, मतलब ऐसे डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में नहीं जाएंगे, सिर्फ वेटनेरियन डॉक्टर्स के साथ में जाएंगे, उनसे फीडबैक भी मिलेगा और उनके थ्रू पुश करेंगे। तो इस तरीके से, और ये फर्स्ट फेज में सिर्फ दिल्ली एनसीआर में फॉलो करेंगे, मतलब पैन इंडिया नहीं जाएंगे। तो वहां से फिर जो फीडबैक्स मिलेंगे उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। आइडियली तुम्हें वो एग्जीक्यूट करना चाहिए। हाँ। वो एक बारी मैट्रिक्स लेने के बाद यू शुड डिटरमाइन या फाइनलाइज कि आपको फंड लेके एक्चुअली यूटिलाइज करना कहाँ है। बिकॉज व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि आपको ऑफलाइन में अच्छा ट्रैक्शन मिलेगा। इवन आप, यू आर राइट कि ऑफलाइन मार्केट की ग्रोथ भी अच्छी है इस इंडस्ट्री के अंदर। राइट। मतलब इवन ऐसा भी नहीं कि आपको रिटेलर के साथ ही करना है। अगर जो वेट्स हैं वो अगर पेशेंट को डॉक्टर मतलब वो बोल रहे हैं तो वो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट से भी बाय कर लेंगे, उसमें आपका बहुत कम पैसा लगेगा। राइट। और वेट से बहुत इन्फ्लुएंस है इंडस्ट्री, क्योंकि सर पेट इंडस्ट्री को आप चाइल्ड की तरह कंसिडर कर सकते हो, और ये रिसेशन प्रूफ कैटेगरी है। तो अगर आपके चाइल्ड को कोई ये बोलेगा कि इसको ये दवाई पिलाओ, तो आप आंख बंद करके उसको परचेज करोगे। तो इसमें भी लोग ऐसा ही करते हैं। Give a clarity, a comparison of the price points which your product have and your peers have. हम लोग जो बेस वेरिएंट है वो हम लोग 749 के आसपास सेल करते हैं। What about your cost pricing? Cost pricing, if you can consider everything, if the packaging is approximately 130. How many overhead expenses and all of things? Monthly expenses you can consider approximately 10 to 15%.
Net profit approximate. approximately 5%, Tell me about month to month growth rate. 10%, 5-7%, sometime 10%, Gross margins 60 to 65%. And what is your ROAS on the D2C? D2C we are doing currently 2.12. And for marketplace? Marketplace, if we ad spend is approximately 15%. So do you mean out of 2.8 CR, close to 1 crores came from your own website, right? 30% of this. So how your CM1 comes out to be 50%? So whatever the matrices I will tell you, that is all the marketplaces, Amazon marketplaces matrices. the marketplace में how much you are spending? 15%. तो आपने अभी FY26 क्लोज किए 2.8 CR पे, MRR के हिसाब से तो अभी कोई ग्रोथ नहीं हुई है इस मंथ में तो। हाँ, बिकॉज उसका मैं रीजन बताता हूँ। पहले हमारा ASP ज्यादा था, पहले हम लोग एसेसरी सेगमेंट पे भी हमारा फोकस था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमने डॉग बेडेड भी थे और केजेस वगैरह प्रोडक्ट्स भी थे। सप्लीमेंट हमने बाद में लॉन्च किए लास्ट ईयर अक्टूबर के अंदर। अच्छा। फिर जब एसेसरीज कैटेगरीज में हमारा एक प्रोडक्ट 2,500 का, 3,000 का, 5,000 का सेल होता था, तो वो रेवेन्यू के अंदर ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा ना नंबर्स में, कि आप एक केस सेल करो 5,000 में सेल हो रहा है और आप 5 सप्लीमेंट्स लॉन्च करोगे तो सेल करोगे तो उसके इक्विवेलेंट आएगा, इसलिए MRR ज्यादा था उस टाइम पे। और दूसरा एसेसरीज कैटेगरीज में O&D में सीजनलिटी आती है थोड़ी बहुत, कि O&D में लोग ज्यादा परचेज करते हैं, तो इसलिए वहां पे रेवेन्यू जंप आता है। नेक्स्ट 12 मंथ का रेवेन्यू प्रोजेक्शन क्या है आपका? अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 CR। तो ये वाली तो आपने किस हिसाब से बनाई है 20 करोड़? फाइनेंशियल मॉडल से किसी एजेंसी से बनवाई थी, ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब जो हमारे रेवेन्यू नंबर्स थे और कुछ एग्जिट मल्टीप्लायर एबिटा, और उन्होंने बनाई थी वेंचर कैपिटल मेथड से एवेल्यूएशन। आई एम श्योर उन्होंने assumption ली होगी कि आप 2.5 करोड़ लेकर के 12 करोड़ का टर्नओवर कर दोगे। हाँ, एजम्पशंस तो उन्होंने लिए हैं। कि हम आज ना 23 लाख पे बात करेंगे, हम 12 करोड़ पे बात नहीं कर सकते, तो हम करेंगे 2 करोड़ पे बात, मतलब जो वैल्यूएशन की बात होगी। तो बट 10x 23 करोड़ तो होता ही सर नहीं है। इस करंट मंथ का है, मंथ ऑन मंथ तो ग्रोथ होती है, मतलब अभी भी तो MRR 23 ही है। तो लीनियर ग्रोथ तो मंथ ऑन मंथ होती है ना। हाँ, वो बिल्कुल होगी, उसी के बेसिस पे ही सेल्स मल्टीपल होता है। अगर आप वैसे बैक एंड पे मल्टीपल देखो, अगर स्टॉक मार्केट में देखो, तो उसमें पैट मल्टीपल होता है, सेल्स मल्टीपल नहीं होता। आपकी मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है, इसीलिए आपको सेल्स मल्टीपल मिलेगा। बट वो सेल्स मल्टीपल 10 नहीं हो सकता, वो AI लैब्स को मिलता है या बहुत टेक हैवी को मिलेगा, या टेक हैवी नहीं है ये। प्लस इसमें मार्केटिंग में बहुत स्पेंड जाएगा, क्योंकि अभी आपको अवेयरनेस जनरेट करनी है मार्केट में। कोई और जैसे कोई स्टार्टअप जो कि इसी फील्ड में आपका कॉम्पिटिटर है, एग्जैक्ट सेम कोई कर रहा है? हाँ, जो मेजर प्लेयर्स हैं, जो रॉयल कैलेंडर रूल्स वगैरह है, वो फूड फोकस है, लेकिन हाँ सप्लीमेंट कैटेगरी के अंदर भी और ब्रांड्स हैं। ऐसा नहीं कि हमने ही पहले स्टार्ट किया, हमसे पहले ही ब्रांड एग्जिस्ट करते हैं। मैं आपको नाम बताता हूँ, K9 विटैलिटी, एब्सोल्यूट पेट, सिर्फ 2 ही ब्रांड्स हैं जो हमारे लेवल की पोजीशनिंग्स मार्केट में रखते हैं और एक डिसेंट लेवल का सप्लीमेंट्स इंडिया के अंदर सेल करते हैं। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी उनके पास काफी है। तो ये वाला जो आप कह रहे हो कि 2 कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी कितनी मतलब वो है, वो किस कॉस्ट में दे रहे हैं? जो एब्सोल्यूट पेट है वो भी हमसे महंगा है, और K9 विटैलिटी है वो तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। टॉप लाइन क्या करते हैं ये दोनों? टॉप लाइन K9 विटैलिटी करता है, D2C करता है सिर्फ, तो हमारे अकॉर्डिंग D2C में भी वो 25 लाख के आसपास कर रहे हैं। तो आप कैसे 1 करोड़ पे पहुंच जाओगे, वो क्यों नहीं पहुंच पा रहे? वो क्यों नहीं पहुंच पा रहे उसका तो मैं आपको मतलब उसका रीजन भी मेरे अकॉर्डिंग ये है कि K9 विटैलिटी का तो सिर्फ Amazon पे उन्होंने कभी नहीं किया, इवन क्विक कॉमर्स वगैरह पे भी नहीं किया, सिर्फ D2C भी करते हैं। तो एक ही डिपेंडेंसी है जहाँ पे वो लोग करते हैं, और स्टार्टिंग से ही उनका प्रोडक्ट मतलब काफी, मतलब 890, पहले तो उनकी प्राइसिंग और भी ज्यादा थी, अब उन्होंने प्राइसिंग रिड्यूस कर दिया। डू यू फील कि ऐसा भी हो सकता है कि इसकी मार्केट उतनी बड़ी नहीं है जितना आप सोच रहे हो? क्योंकि अगर आप पहले प्लेयर होते ना तो मैं क्वेश्चन ही नहीं करता। मार्केट है सर बड़ी। हमने अमेज़न का डेटा देखा था लास्ट ईयर का, प्रोबायोटिक के अंदर 200% की ग्रोथ है ईयर टू ईयर। And there's one more company in the same segment. You may correct if I'm wrong. Heads Up for Tails, if I'm not wrong. You are right, sir, but Heads Up for Tail is more oriented to retail business. And they are in the whole segment. They are selling the food, they are selling the cloth, they are selling supplement, everything they are selling. Because of the vintage they have in the market. Right. And Came up with the multiple SKUs. yeah, so if we can talk about the data of Heads Up for Tails, recently we'll discuss with the Amazon team, and we will take the data of every company, how much they are revenue. So Heads Up for Tails total revenue from the Amazon is 1 CR per month. Otherwise they are doing top line of what? 100 CR or what?
more than 100 CR, more than 100 But they CR, are- because they are from retails. They are They are- major- They do retail have a for distribution channel. They are present on all the retail shops. yeah, and they are from their D2C websites and all. Yeah, you are right. They are on the retail shops. कितनी फंडिंग चाहिए अभी आपको? 2.5, हाउ मच स्टेक यू आर डायल्यूटेड? 12%. तो फंड को यूटिलाइज कैसे करोगे आप? Fund को utilize 40% is marketing, 40% इज मार्केटिंग, ओके 25% is product NPD, ओके। and approximately 15% is salaries. कितने एम्प्लॉई हैं अभी तक आप? अभी हमारे पास 5 to 6 employee हैं. 5 to 6। 20% we will in the inventory management and cash flow, ओके and 10% apart from the capex, tech and other things. इस फंडिंग के बाद कोई और फंडिंग भी लेने का है आपको? 18 मंथ तक हमें कोई और कुछ नहीं चाहिए. और कुछ नहीं चाहिए इस पर? ओके, मुझे एग्जिट कब दोगे अगर मैं आज आपको फंड कर? एग्जिट के 3 स्ट्रेटजीज हैं हमारे पास. पहली स्ट्रेटजी ये है कि आप सीरीज ए जब लोग हम ले लें, सीरीज ए के बाद में या तो आप पार्शियल डाइल्यूट कर सकते हो या अपना फुल्ली डाइल्यूट कर सकते हो. सेकंड स्ट्रेटजी ये है कि स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ द कंपनी. सीरीज ए के बाद में कोई बिग प्लेयर, रिलायंस, बिकॉज इंडस्ट्री बूमिंग है, हर बंदे का इंटरेस्ट है, हर एक कंपनी कुछ ना कुछ बिल्ड करना चाहती है, वो स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन हो तो पूरी कंपनी एक्वायर हो जाए तब आप एग्जिट ले सकते हो. एंड थर्ड स्ट्रेटजी इज like if you looking for the long term, and we are also looking for long term, that is IPO. एक लास्ट लाइन में मुझे बताओ अभी मैं आपकी कंपनी में फंड क्यों करूँ? फर्स्ट थिंग इज मार्केट ग्रोइंग है. अगर आप कहीं से भी रिपोर्ट्स वगैरह एनालिसिस करोगे कि पेट इंडस्ट्री इज वेरी हाई ग्रोइंग इंडस्ट्री, वन ऑफ द टॉप इंडस्ट्री. और पेट इंडस्ट्री में मैं अगर थोड़ा नैरो डाउन करूँ तो जो न्यूट्रिशन सेगमेंट्स है, जो न्यूट्रिशन फोकस है, वो ज़्यादा ग्रोइंग है. फर्स्ट थिंग इज दिस. सेकेंड वन इज हमारे पास अच्छा रेवेन्यू ट्रैक्शंस है पास्ट 12 मंथ्स का. हो सकता है कि उसमें हमारे टोटल मार्जिन्स वगैरह सेव नहीं हुए होंगे या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन हमें ये पता है कि पोजीशंस मार्केट में कैसे करना है, प्रोडक्ट को कैसे करना है और कस्टमर क्या सोचते हैं और हम कैसे लॉन्च करेंगे. दिस इज सेकंड थिंग. थर्ड थिंग इज कि हमारे पास मतलब खुद के पास, मैं एक खुद पेट पेरेंट हूँ तो मैं एज ए पेट की तरह सोच सकता हूँ कि पेट को एक्चुअल में क्या चाहिए होता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और मतलब क्या स्ट्रेटेजी उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं. मतलब मेरी रिकमेंडेशन ये है कि एक तो आप 2.5 करोड़ अभी उठाओगे मत. पहले आप अपनी जो एग्जिस्टिंग चीज है ना वो स्ट्रॉन्ग करो कि वेट्स के साथ वो करो, उसमें ज्यादा पैसा नहीं लगेगा. रीच आउट करो, एक सिटी में आप इस्टेब्लिश करो कि वेट्स को आप बोलो कि भाई आप जो रेफर करोगे उसमें एक सर्टेन परसेंटेज कमीशन रहेगा उस टाइप से, और वो D2C से आप डायरेक्टली करो. You before raising the funds, you should at least taste the water of the offline market. वहाँ का metrics develop करके then you will be able to pitch better to the investors about how much money actually you will be deploying where. आज 2.5 करोड़ उठा के ना आपको प्रेशर आ जाएगा, अपना D2C फूक दोगे, मार्केट पे फूक दोगे, पता चलेगा कुछ नहीं बना, इन्वेस्टर भी जान खाएगा, यू विल गेट इनटू अ मेस. आप मुझे ये बताओ अभी आप अपना जो वैल्यूएशन है वो कम कर सकते हो? आपकी साइड से क्या ऑफर है? 15 CR के अप्रोक्सीमेट. 2.5 करोड़ या चेक साइज कम? चेक साइज नेचुरली कितना चेक साइज? 10% स्टेक अप्रोक्सीमेट 1.5 CR. आप अकेले आओगे आपके साथ में, मतलब ऐसा? मेरा D2C ब्रांड्स की मार्केटिंग में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आई नो दिस वन की हाउ टू वायरल दिस वन ऑल ऑफ थिंग्स, ठीक है ना, मुझे वो बड़ा इजीली समझ है, सो दैट्स व्हाई एग्री, एक्सेप्ट. ओके डन, आई एम रेडी टू इन्वेस्ट. थैंक यू. चेक चलो. लाइक दिस वन ना, या Congratulations. थैंक यू.